Hello everyone, welcome back to the channel. Few days back we did the review for Innova Crysta facelift, but it was the base model. So today we have the top model, the ZX. So today we'll review it and we'll see what all is new, because main जो features add हुए हैं वो इस model में हुए हैं. तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. We'll talk about space, we'll talk about performance, and in the end we'll talk about should you buy it in 2021 or not, because there's a lot of competition right now. Safari भी आ चुकी है. So yeah, we'll talk about it. And before we start, special thanks to Commercial Toyota for helping me out. अगर आपको Toyota का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में. कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, टेस्ट राइड बुक करिए, गो टू अ शोरूम, हैव अ लुक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Now let's do one thing. Let's drive the Crysta. So let's start with the walk around. सबसे पहले मैं आपको Innova Crysta facelift का प्राइस बता देता हूँ. So it starts from 16.26 lakh ex showroom and goes all the way till 24.33 lakh ex showroom. The biggest difference that you'll see is the front fascia, because it's a facelift. So we have an all new grille. You can see the chrome treatment. Also in the center we have the Toyota logo. Headlights की तरफ आए, so आपको projector setup मिल जाता है. These are your DRLs. Down here we have a new housing for the indicators. सो ये आपको न्यू हाउसिंग मिल रही है एंड एकदम कोने में लगाए गए हैं. सो दिस इज़ न्यू. ऑल्सो डाउन हेयर वी हैव LED फॉग लैम्प्स. सो दैट हैज़ बीन डन रियली नाइसली. ऑल्सो नाउ वी गेट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स. सो ये भी एक अच्छा इंक्लूजन है. एंड द फ्रंट अकॉर्डिंग टू मी हैज़ बीन डन रियली नाइसली. इट ब्रिंग्स इन अ फ्रेश वाइब, बट नॉट अ रियली फ्रेश वाइब, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द साइड प्रोफाइल, अभी अपन देखेंगे और अच्छे से, it's pretty much similar. Coming towards the engine, so we have option of a diesel and a petrol. So the one we have today is 2.4 diesel. ये produce करता है 150 PS and 343 Newton meter torque in the manual variant and 360 Newton meter torque in automatic. You can see good insulation has been provided. Also the hood is quite heavy. Also we have a petrol. वो प्रोड्यूस करता है 166 PS एंड 245 न्यूटन मीटर टॉर्क. सो यू हैव द ऑप्शंस फॉर बोथ. ऑल्सो आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, और यू कैन गो विद द 5 स्पीड मैनुअल. वी हैव द मैनुअल टुडे. साइड प्रोफाइल की तरफ आए, सो द बिगेस्ट डिफरेंस, अलॉयज. बिफोर the alloys looked really small, the size was really big, so alloys बहुत छोटे से लगते थे. But now because of the new design we have 17-inch alloys. It's looking so good, so well proportioned, and I now like the side profile really much. Alloys की तरफ आए, so आपको ये diamond cut alloy wheels मिल रहे हैं, which are looking really good. Tire size की बात की जाए, so it's where's the 215 by 55 R17. So that is the tire size. Also आपको ORVM में chrome treatment मिल जाता है. We have turn signals here. On the top we have the shark fin antenna. Rear profile के बारे में बात की जाए, so rear में आपको कोई changes देखने को नहीं मिलेंगे. And that is kind of disappointing, because in this facelift at least Toyota should have given the LED tail lights. वो नहीं दिया गया है, and we still get the halogen unit which looks dated. So वो एक चीज़ है. बाकी आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं. वी हैव द रियर पार्किंग कैमरा. दिस साइड वी हैव द इनोवा क्रिस्टा बैज. यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है एंड इट्स प्रीटी मच सिमिलर एट द रियर. बूट स्पेस के बारे में बात की जाए, सो विथ ऑल द सीट्स अप, बूट स्पेस इज डिसेंट, बट वी ऑल नो वी कैन फोल्ड द सीट्स वेरी easily and you'll get a lot of space. Also for all the passengers, like even for the middle passenger in the third row, we have a headrest. So that is very thoughtful, and the boot space looks decent. You can fold it from here, so ये आप ऐसे साइड में कर सकते हैं, but we won't do it as of now because अभी आपको बैठ के भी दिखाना है मेरे को. अब चलते हैं इसके रियर सीट की तरफ. सो दिस इज द सेकेंड रो. सबसे पहले डोर्स से स्टार्ट करते हैं. So we have this wooden treatment, chrome door handle. These are your window controls. Big door pockets.
मतलब 2-3 आप 1 लीटर की बॉटल रख लेंगे. ऑल्सो द एंट्री इज़ रियली स्मूथ, लाइक यहाँ पे कोई बल्ज जल्ज नहीं है, तो आप आराम से एंटर कर सकते हैं. वी ऑल्सो हैव अ टेबल हेयर, so you can use it like you can keep a cup here, you can use it as a picnic table. That is also good. यहाँ पे भी wood का यूज़ किया गया है. The seats are really comfortable as soon as you look at it, because इसका बेस अच्छा लंबा है. These are really wide, so बड़े से बड़े लोगों को यहाँ बैठने में दिक्कत नहीं होगी. You can also recline it, but अभी मैंने इसको टम्बल कर दिया. So अब एक काम करते हैं, let's move towards the third row first, and फिर second row देखेंगे. So entry is really easy. Yeah. So आप ऐसे आराम से एंटर कर सकते हैं, and then you can put the seats up. यहाँ पे decent space आपको मिल जाती है, not really much. बाकी आप seats को recline कर सकते हैं. So you can recline the seats and you can have some space here. Like even for adults, it's spacious. It's not like कि आप बिल्कुल यहाँ नहीं बैठ सकते. So it's spacious, but I'll say it's best for kids. बच्चों को बैठाइए, दे विल बी रियली कंफर्टेबल हेयर. आपको हेडरेस्ट भी मिल रहा है. वी ऑल्सो हैव नाइस बेस, बिकॉज बहुत सी थर्ड रो में ऐसा होता है कि बेस बहुत छोटा होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. बट द सिटिंग पोजिशन इज नीज अप. एकदम आप देख सकते हैं मेरे पैर ऊपर ही जा रहे हैं, एंड दैट इज द थिंग. बाकी यहाँ पे आपको AC के ब्लोअर्स मिल जाते हैं, साइड में आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं. सो कंफर्ट इज डिसेंट हियर, नॉट बैड. अब चलते हैं इसकी सेकंड रो की तरफ. सो आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है. आई एम 6 फीट. आप देख सकते हैं मेरे पास अच्छा खासा स्पेस है. नीचे भी बहुत अच्छी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए. आपको मैगजीन होल्डर्स भी मिल जाते हैं. ऑल्सो इफ आई वॉन्ट मोर स्पेस आई कैन पुश इट. सो आपको यहाँ पे बटन भी मिल रही है. सो यू कैन पुश द को ड्राइवर सीट अहेड एंड यू कैन हैव ऑल द स्पेस टू योर सेल्फ. यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है. यू कैन कीप योर फोन. सेंटर में थोड़ा सा हम्प है, बट नॉट अ बिग इशू. एंड एज दिस इज द 7-सीटर वेरिएंट, तो यहाँ पे आपके पास 2 कैप्टन सीट्स हैं. आप आराम से बैठिए. आपको इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी मिल जाता है. डाउन हियर वी हैव ट्विन कप होल्डर्स ऑल्सो. एंड यहाँ पे आपको पूरे अपने AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं. वी हैव लाइट्स. वी ऑल्सो हैव दिस ब्लू एम्बियंट लाइटिंग, सो दैट इज ऑल्सो रियली गुड. यहाँ पे भी एक लाइट मिलती है, सो लाइट की कोई कमी नहीं है. एंड द सीट्स आर रियली कंफर्टेबल मैन. लाइक द अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट, बट व्हाट इज रियली गुड इज द कुशनिंग और जो इसकी पैडिंग है वो बहुत अच्छी है. सो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस ऑल्सो यू वोंट फील एनी फटीग. दैट इज अमेजिंग. अब चलते हैं इसकी ड्राइवर सीट की तरफ. सो की से स्टार्ट करते हैं. दिस इज द की फॉर इनोवा क्रिस्टा. इसमें आपको इनोवा का बैज मिल जाता है. वी हैव दिस ब्लू इफेक्ट हियर. इसमें आपको लॉक एंड अनलॉक का फीचर मिल जाता है. टोयोटा का लोगो. वी हैव रिक्वेस्ट सेंसर्स ऑन बोथ द साइड्स. डोर से स्टार्ट करते हैं, बट फर्स्ट लेट मी स्टार्ट इट. या सो यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं. विंडो कंट्रोल्स. हियर वी हैव क्रोम डोर हैंडल. दिस इज फैब्रिक, सो इट्स कंफर्टेबल. बिग डोर पॉकेट्स. आप इजीली 1 लीटर की बॉटल और भी बहुत कुछ रख सकते हैं. 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है आपको. को ड्राइवर सीट इज मैनुअली एडजस्टेबल, उसको भी पावर्ड कर सकते थे. यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है. वी हैव द वुडन ट्रीटमेंट. डाउन हियर वी हैव द हुड एंड फ्यूल लिड ओपनर, तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं. अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से दिस थिंग. It's been such a long time, but still today, the interior of Innova Crysta looks really premium. Like, just look at it. It has that plushness, which I really like. But as soon as you touch the materials, everything is hard plastic. But यहाँ सेंटर में ये wood यूज़ किया गया है, which looks good. Steering की तरफ आए तो इसमें भी आपको ये wood मिलता है. It's leather wrapped. This side we have multimedia controls. This side we have the instrument cluster control. यहाँ पे आपको cruise control मिल जाता है. Steering is tilt and telescopic adjustable. आपको दोनों ही adjustability मिल रही है. Coming towards the instrument cluster, so we have big dials. This side we have a tachometer. This side we have a speedometer. We have many functions, so you can set the fuel price. You can have all the eco-saving techniques and real-time fuel efficiency. We have the multimedia and we have the settings, so it's loaded. There are a lot of functions. On the left we have a digital clock, and finally we get a new infotainment system. So ये 8 inches का है. It finally gets Android Auto and Apple CarPlay, which was really needed. Like
बहुत ज़रूरी था. So it finally gets it, and also it gets connected car tech like geofencing, real time tracking. So वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिल रही हैं. इसका रिजोल्यूशन अच्छा है, टच रिस्पॉन्स अच्छा है, एंड इट्स अ गुड सिस्टम. लैग नहीं करता है, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है. एंड यू कैन ऑल्सो चेंज थीम्स. सो इसमें आप थीम्स चेंज कर सकते हैं. सो दैट ऑल्सो हैज़ बीन गिवन. ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल. डाउन हेयर वी हैव इको मोड एंड पावर मोड. सो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं. वी ऑल्सो हैव अ नॉर्मल मोड. तो अगर आप इको से भी हटा देंगे, सो वी आर इन द नॉर्मल मोड, एंड देन वी हैव द पावर मोड. From here you can turn off the traction control. Down here we have a USB. This is a 12 volt. Here we have a lot of space, like you can keep a lot of stuff here. This is the transmission जिसके बारे में भी बात करेंगे. Here we have one cup holder but not a issue because इधर पे और इधर पे भी आपको cup holders मिल रहे हैं. So in total 3 cup holders आपको सामने मिल रहे हैं. No issues with that. This is the handbrake which feels kind of small considering the size of this car. So वो एक चीज़ है. इन द सेंटर वी हैव अ आर्म रेस्ट विच इज सॉफ्ट टच, एंड इसके अंदर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है. सो यू कैन कीप अ लॉट ऑफ स्टफ हियर. बाकी ये स्लाइडेबल नहीं है. स्लाइडेबल होता तो और बेटर रहता. यहाँ पे आपको 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं. द अपर वन इज कूल्ड एंड इसके अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है. नीचे वाला इज लॉकेबल एंड इसके अंदर भी आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है. सो आपको 2 ग्लव बॉक्स मिल रहे हैं. The IRVM is manually dimming, which is again a miss according to me, because at this price point you should give a auto dimming. Okay, here we have a mirror and a light. Co-driver side also we have a mirror and a light. यहाँ पे आपको ये blue ambient lighting और पूरे लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं. So you can turn on the lights from here. सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए, so आपको स्टैंडर्ड 3 एयरबैग्स मिल जाते हैं. ऑन हायर ट्रिम्स आपको 7 एयरबैग्स मिल जाएंगे. We also have ABS with EBD, vehicle stability control, hill start assist. So safety is no issue with this thing. And all in all it looks good. अब एक काम करते हैं, let's drive this thing. So let's go, let's first check the rear parking camera. इसमें आपको adaptive guidelines नहीं मिलती हैं, normal guidelines हैं. And the resolution is okay. Now, revving the engine, let's go. Rev still 4500 RPM. And there's a thing about this engine कि जैसे जैसे आप इसको चलाना स्टार्ट करेंगे ना, it becomes more and more refined. Initially आपको लगेगा कि इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, आवाज़ ज़्यादा आ रही है, हार्शनेस है. बट जैसे जैसे आप इसको चलाने लगेंगे और जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे, it becomes refined and refined and refined. Like अभी आप देखिए, really good. So that is the character of this engine. Right from 1400 rpm the max torque is available. So pickup लेने में, overtakes करने में आपको कभी भी कोई issues नहीं होंगे. And the power is plenty. कभी भी आपको power की कमी नहीं लगने वाली है. So that is the characteristic of this engine. Till 2800 rpm 3000 rpm आपको अच्छे खासा pull मिलेगा. But after that engine में ज़्यादा pulling power नहीं बचती है, आवाज़ ज़्यादा करता है. So the best range is to keep it under 3000 rpm. आपको अच्छा मजा आएगा उसमें. Coming towards the gearbox, so right now we have the 5-speed manual. First of all, the clutch is light and the gearbox is good. It's a bit on the heavier side, so आपको थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी gear change करते टाइम. But it gives you a very assuring feeling. आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि it's a very fancy gearbox या फिर बहुत weird behave कर रहा है. नहीं, it gives you a very good composure and feedback. So आपको proper satisfaction मिलेगा हर बार gear change करते टाइम. Also जब आप इंजन को एकदम throttle करते हैं ना, मतलब एकदम से आप rev करते हैं, इस gear lever पे आपको बहुत ज़्यादा vibrations feel होंगे for sure. So वहाँ पे थोड़े से NVH लेवल सुधारे जा सकते थे. NVH लेवल्स के बारे में बात की जाए, so जैसा ही मैंने आपको बताया, इनिशियली इंजन की आवाज़ आती है, बट जैसे जैसे आप चलना स्टार्ट कर देते हैं वो सब गायब हो जाता है. सो NVH लेवल्स आर गुड हियर. लाइक सस्पेंशन बहुत साइलेंटली काम करता है, रोड का कोई नॉइज नहीं है, विंड का कोई नॉइज नहीं है. बट इनिशियली वही थोड़ा इंजन का नॉइज है, वो भी बाद में गायब हो जाता है. सो NVH लेवल्स आर गुड. स्टीयरिंग के बारे में बात की जाए, सो स्टीयरिंग इज अ लाइट वन. इट्स अ प्रैक्टिकल स्टीयरिंग. नो मैटर, yeah, we are testing the horn also today.
these auto वालास go everywhere, like कहीं भी चलाते रहेंगे. So we are talking about the steering right now. It's a light steering, it's a practical steering, and at whatever speeds you take it at, ये light ही रहता है. Feedback is decent, ज़्यादा way up नहीं होता है. So that is where the improvement could have been done. Like जैसे से आप स्पीड बढ़ाएं, थोड़ा सा वे अप हो, उससे आपको बेटर कॉन्फिडेंस आता है. बट यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा, ज़्यादा वे अप नहीं होती है. बाकी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बहुत अच्छी है, बिकॉज अगर आप इस कार को सिटी में चलाना चाहते हैं, यू वांट अ लाइट स्टीयरिंग, जिसकी वजह से आप इस मैसिव कार को आराम से मनूवर कर सकें, टर्न कर सकें, यू टर्न ले सकें. सो वो प्रैक्टिकलिटी इट्स गुड. टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, सो यहाँ पे तो क्रिस्टा किंग है. It's the king because I have never seen such a good suspension setup, because like जब आप ऐसे नॉर्मली चलते हैं ना, it's very planted, आपको ज़्यादा बॉडी रोल फील नहीं होता है, and you feel that firmness. आपको वो firmness फील होगी जिसकी वजह से आपको हायर स्पीड कैरी करने में ना दिक्कत नहीं फील होती. You feel very confident. So अगर आप 100-120 भी इसको लेके जाएं, you feel that firmness, that stability. So that is good. बट जैसे ही कोई गड्ढा आता है, कोई पॉटहोल आता है, कोई बैड सेक्शन आता है, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है. लाइक इट्स सो इंटरेस्टिंग, एंड राइड क्वालिटी इज द यूएसपी ऑफ क्रिस्टा. आज भी आई डोंट सी एनी अदर कार एट दिस प्राइस रेंज जो इतना अच्छा सस्पेंशन सेटअप ऑफर कर रही है, इतनी अच्छी राइड एंड हैंडलिंग ऑफर कर रही है. सो यहाँ पे तो कोई तोड़ नहीं है इनोवा का, एंड इट्स स्टिल द किंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया. अमेजिंग राइड क्वालिटी इज अमेजिंग. सो यहाँ तो मजा ही आ गया. अब बात करते हैं माइलेज के बारे में. सो इन द सिटी यू कैन एवरेज अराउंड 8 to 10 kilometers per liter, and on the highways you can average around 12 to 14. So that is the mileage figure. आप उतना एवरेज कर सकते हैं. And now let's talk about the visibility. So visibility is no issue in this thing because we have a lot of glass area, quarter glass. So कहीं पे भी आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है. You can easily point this car, turn this car. And now let's check the stability also, because it's a Innova and it's made for highways. So second gear above 65. And that's 100. And now I will put it in fifth gear. अब आप देखिए, so silent, so quiet, and we can keep going like this for miles and miles without any issue. Now I'll take a left and we'll quickly do the braking test. There's no one behind. So यहाँ पे अपन जल्दी से एक ब्रेकिंग टेस्ट कर लेते हैं. Really good braking. Amazing. Like at that speed, the stability was amazing. The braking performance was really good. It was really progressive. मेरे को एकदम डर नहीं लगा अंदर से कि गाड़ी यहाँ वहाँ जा रही है. नहीं, it was very stable. So the braking is really good of this car. And now let's talk about should you buy it in 2021 or not. So according to me, if your main purpose is long distance touring and you want that comfort, so आज भी Innova King है. You cannot replace it because इतनी अच्छी राइड क्वालिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी. So in this area, Innova को कोई बीट नहीं कर सकता. But in terms of features, yes, features have been included, but again, a lot of things are missing here. Like अभी सफारी भी आ गई है, सफारी आने वाली है, एंड Hyundai की तरफ से भी एक 7-seater आने वाली है. You can look at Hector. So those cars offer a lot of feature, ton of features. But यहाँ पे features थोड़ी सी कम है. कम क्या मतलब, अभी तो ऐड कर दिए गए हैं, but in comparison a lot of things are missing. So वो एक चीज है, but for the ride quality, for long distance touring, I will still prefer Innova, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है. When you drive Innova in eco mode, आपको इंजन से थोड़ा सा हेजिटेशन फील होगा. ये इतना ज्यादा रेव हैप्पी फील नहीं होता है. बट जैसे ही आप इसको पावर मोड में डालेंगे, the engine becomes so rev happy and you feel that punch.
So modes are also amazing on this thing. One thing that I wish was a bit more competitive is the price, because looking at the competition and looking at the segment, Crista का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, इट्स ऑन द हायर साइड. सो थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव रहता तो मज़ा आ जाता. बट दिस इज द ट्रेंड दैट टोयोटा इज फॉलोइंग नाउ डेज. लाइक फॉर्च्यूनर भी अभी लॉन्च हुई है एंड उसके भी प्राइसेस मैसिवली इंक्रीज हुए हैं. सो कांट हेल्प, इसके लिए सिर्फ अपन विश कर सकते हैं. बट या, वॉट इनोवा स्टैंड्स फॉर, इट्स स्टिल इंटैक्ट. कंफर्ट, लग्जरी एंड द राइट क्वालिटी, इट्स स्टिल इंटैक्ट. And that is amazing. So if you want these things, you can buy Innova. You can still go for it if you can pay the price, because this model will cost 23 lakh rupees ex showroom. This one, the manual diesel. So those are the prices. And yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसका like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about Innova Crista facelift. Also मैंने बेस मॉडल का भी रिव्यू किया है, तो आप उसको आई बटन में देख सकते हैं इफ यू वांट टू सी द बेस मॉडल ऑफ इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट.